Whenever a woman hurts another woman, society says औरत ही औरत की दुश्मन होती है. But when a man is bullied for crying, for wearing makeup, for being short, for being too feminine, for not being masculine enough, who is usually doing it? Most of the time, it's other men. And somehow, feminists still get blamed for hating men. Welcome and welcome back to my channel. This is Akriti and I hope you all are doing well. In today's video, we are going to be talking about toxic masculinity, the pressure that men create on other men, and how men are men's biggest enemies. This is not me saying that women can never be toxic. This is me asking that who created the standards that men themselves suffer under. Patriarchy doesn't only control women, it also punishes men who fail masculinity. A man can be kind, intelligent, emotionally mature, but if he does not fit the masculine aesthetics, other men reduce him to a joke. I can give you multiple examples to show how true this is. So let's take height shaming for example. अगर कोई आदमी छोटा है तो दूसरी लड़कियों से ज़्यादा उसका आदमी खुद ही मजाक उड़ाते हैं और अपने हाइट के लिए इतना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं as if that is the biggest achievement that they've had in their life, and they keep shaming other men by calling them names like ये तो छोटू है, बौना है. I've talked with some short men that I know, and I have heard their trauma. I've heard the bullying that they went through in their school days or in their college days by other men, their own friends. They would shame them. They would call them names कि ये तो dwarf है और भी बहुत सारी चीजें just because this guy is short. Now take skinny men for example. Other men would call them names like ये तो माचिस की तीली है, ये तो बहुत ही पतला है, इसमें तो जान ही नहीं है, इसको फूक मारेंगे तो उड़ जाएगा. On the other hand, if a man is fat, he's called names like ये तो lazy है, इसकी तो मर्दानगी ही नहीं दिखती है, आदमी लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, they should be strong, they should be masculine, they should have muscles, all of these things. So if you do not have the perfect body, especially as a man, you're still shamed. तुम्हारे perfect muscles होना चाहिए, you should have like the gym body, you should have abs and everything, you should have strong arms and legs, and अगर तुम मोटे हो या पतले हो तो other men will make your life hell basically. Now take a man or a boy who cannot grow beard maybe in his school days or afterwards. उसका भी दूसरा लड़के जीना मुश्किल कर देंगे बोल बोल कर कि तू तो छक्का है, तू तो चिकना है, तू तो लड़की है, तेरी तो दाढ़ी नहीं आ रही. They would make his life hell, and that guy would be forced to try so many things, put onion on his skin and whatnot. I've seen men try to do all those things just to escape the bullying. And in fact, these men would not only shame men who cannot grow beard, but also shame women who like these men. तो बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि अगर किसी लड़की को K-pop पसंद है या कोरियन मैन पसंद है तो उनको शेम करेंगे कि तुम्हें वो छक्के जैसे आदमी लोग क्यों पसंद है, उनकी तो दाढ़ी भी नहीं आती, वो तो चिकने होते हैं. तुम खुद भी मजाक उड़ा रहे हो, सामने वाला जो उसको पसंद कर रहा है उसका भी मजाक उड़ा रहे हो. हाउ फुल ऑफ हेट कैन यू बी? टेक अनदर एग्जांपल. इफ अ मैन इज इनटू स्किन केयर और ब्यूटी, उसका तो भाई ऐसा मजाक उड़ाते हैं. मतलब बंदा भाई बेसिक हाइजीन फॉलो कर रहा है, अपनी बियर्ड अगर शेव कर रहा है अच्छे से, उसके लिए वीडियो बना रहा है, डिओड्रेंट लगा रहा है आर्मपिट में, कुछ भी कर रहा है बेसिक सी चीजें, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं भाई कि हम तो भाई बर्तन धोने वाले साबुन से ही मुंह साफ कर लेते हैं. तो तुम करते हो, गुड फॉर यू. जिस आदमी को अपनी स्किन की केयर करनी है, अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? व्हाट्स रॉन्ग विद बेसिक ग्रूमिंग? कोई बेसिक ग्रूमिंग करने से आदमी औरत में कन्वर्ट हो जाता है क्या? क्या लॉजिक है भाई? एंड अगेन फॉर women, these men are so attractive. Men who take care of their body, men who smell good, men who take care of their hygiene. Women love these men. We hype them up in their comments. जिन लड़कों को मेकअप करना आता है, उनको बेसिक स्किल्स पता है, we appreciate them so much. There are a lot of beauty influencers like अंकुश बहुगुना है, सूजल ठक्कर है, इतने सारे लोग हैं. उनके कमेंट्स में जाकर देखना, women are always hyping them up. कोई एक तो इनकी ऑडियंस मेजरली फीमेल है क्योंकि ऑब्वियसली आदमी लोगों को तो इनको सपोर्ट करना ही नहीं होता है. अगर वो आएंगे भी इनके कमेंट्स में तो सिर्फ गंदी गंदी बातें लिखकर जाएंगे कि तुम मर्द होकर कमेंट्स क्यों करते हो. आई एम नॉट सेइंग लड़कियां शेम नहीं करती हैं, बट अधिकतर ज्यादातर इट इज मैन, एंड यू विल नोटिस दिस पैटर्न. एक और एग्जांपल ले लो. कोई लड़का है जो स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं है, मे बी क्रिकेट नहीं खेल पाता, फुटबॉल नहीं खेल पाता, उसको ऐसा साइडलाइन करके बुली करेंगे कि अरे तू तो हट जावे, तू तो लड़की है, तेरे को तो दौड़ना नहीं आता, तू तो लड़की जैसे दौड़ता है, लड़की जैसे चलता है, तेरे को तो स्पोर्ट्स खेलना नहीं आता बेसिक. My God, a guy could not be good at sports and still be manly enough. He could be good at other things like arts or anything, right? Just because you're a man, it doesn't mean that you have to be good at sports. And most of the time, women understand this. It's other men who don't. और ये ऐसे ही लड़के हैं जो दूसरे लड़कों का मजाक उड़ाते हैं, and they are involved in things like sigma male, alpha male bullshit, and they'd watch all these movies, Animals and Kabir Singh, and get inspired by the central male that is shown and the godlike figure. When in reality these men have like zero emotional intelligence and maturity. यही लड़के हैं जो दूसरे लड़कों को जाकर बोलेंगे अभी तू छक्का है, मर्द बन, थोड़ा ठोस बन भाई, थोड़ा बॉडी बना, थोड़ा मर्दानगी ला अपने अंदर, लड़की जैसे क्यों रो रहा है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये ज्यादातर आप सुनोगे कि दूसरे लड़के ही लड़कों को बोलते हैं. डू यू नोटिस हाउ द वर्स्ट इंसल्ट फॉर अ मैन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ वुमन? एक लड़के को लड़की बोल देना इज एन इंसल्ट. ऑन द अदर हैंड,
लोग लड़कियों को अप्रिशिएट करने के लिए उनको लड़कों से कंपेयर करते कि ये तो बेटी नहीं बेटा है मेरा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हमें झांसी की रानी को अप्रिशिएट करना है तो वी आर कंपेयरिंग हर टू अ मैन, बट अगर किसी लड़के को इंसल्ट करना है तो उसको लड़की से कंपेयर करो। व्हाट इज दिस? Now let's talk about school and childhood conditioning. This is something that I feel very strongly about because I've seen my friends, one of my closest friends, go through this just because he was not manly enough. So in every class, there is this one guy who is slightly more soft-spoken, who maybe walks in a different way, who is not very harsh, not very rude, who is quieter, who may be weak, lean, maybe bad at sports. He may be good at other activities like art or singing or dance, traits which are usually considered feminine in nature. And what happens to such a guy? He becomes the punching bag. He becomes the scapegoat, the joke, the target of the entire class, especially that of boys. किसी को एंटरटेनमेंट करना है, किसी को बुली करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जाके इसको मार दो, इसके बाल खींच दो, इसका बैग उठा के फेंक दो, इसका टिफिन चुरा लो. All of these things, I've seen this happen and I am sure that most of you might have too. Boys learn very early. You will only be accepted in a group if you perform masculinity correctly. और masculinity का correct definition इनके लिए होता है दूसरों को बुली करना, अपने से weak लोगों को मारना, उनको पीटना, उनका मजाक उड़ाना. मैंने लिटरली ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है. क्लास में एक लड़का नहीं होता जो बहुत शांत सा अकेले सा बैठा रहता है, वो कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं बोल रहा, बट दूसरे लड़के आकर उसका मजाक उड़ाएंगे, अबे उठ जा, ये जगह मेरे को दे दे. मतलब बेसिकली उसको टॉन्ट मारना, उसकी लाइफ को हेल बना देना, एंड दे डिराइव जॉय फ्रॉम दैट. आई डोंट नो इनके पेरेंट्स ने इनको क्या सिखाकर भेजा होता है, इनकी बेसिक एम्पैथी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, वट एवर, बट दिस डज हैपन इन स्कूल्स. And you'd see that mostly men who are very soft, kind, they would prefer to hang out with women क्योंकि वो उन लड़कों वाले ग्रुप में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, and those boys would not accept this man because they would want him to be rowdy and rough. Another point that I want to talk about is how men do not allow other men to be emotional around them. Showing emotions, being vulnerable, it scares men, even in friendships. Now, I'm not saying that women's friendships are perfect, but at least women give the space to each other to express themselves, to hold each other's emotions, to hug each other when we need it the most. So if I cry in front of my girlfriend, she's going to hold me, she's going to ask me questions, she's going to console me, she's going to talk about it till the point that I feel okay. If I want to talk about it 100 times, she's going to listen to me talk about it 100 times. On the other hand, when it's male friendships, male friends would mostly say stuff like, लड़की जैसे क्यों रो रहा है, चल दारू पीते हैं, पार्टी करते भूल जाएगा, क्या एक ही बात लेके बैठ गए. They would not sit and talk about it. So in the end, these emotions are not processed, they are just left like that. Most of the times men feel lonely because they do not have people to share their feelings with, they do not have anyone to talk to. Mostly लोग अपनी लाइफ की अधिकतर बातें या तो अपने सिबलिंग से शेयर करते हैं, या किसी के पेरेंट्स बहुत कूल हैं उनसे शेयर करते हैं, या मोस्टली इट्स देयर फ्रेंड्स, राइट. और लड़कों की दोस्ती में बहुत बार ये स्पेस ही नहीं होता, ये अलाउंस ही नहीं होता कि तुम बैठकर अपनी फीलिंग्स की बात कर पाओ. इट्स मोस्टली अबाउट हैविंग फन एंड ऑन द सर्फेस. आई एम नॉट सेइंग कि ये दोस्ती डीप नहीं होती है, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जगह नहीं होती है. I've seen a lot of male friends talk about it कि they would rather share something with their female friends rather than their male friends, क्योंकि वो या तो उनका मजाक उड़ा देंगे या हंसी में उड़ा देंगे उस बात को, या बात करेंगे ही नहीं उस टॉपिक पर. So many men go through major heartbreaks, breakup, big life problems without ever having expressed their feelings with their friends, without ever having shared what's going on in their mind. उनके मन में पूरी उलझन चल रही होगी, बहुत confusion होगा, सब कुछ होगा, but they would not talk about it because the other man is not giving them the space. Men feel comfortable sharing their emotions with their girlfriends, with their female best friends, but ये space उनको दूसरे आदमी लोग नहीं देते हैं. अगर एक आदमी ट्राई करके खुल के अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे भी और गलती से अगर रो दे तो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि तू क्या लड़की जैसे रोना लेके बैठ गया यार, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, दारू पी के भूल जाते हैं. एंड मे बी मोमेंटरीली इट वर्क्स, ओके, किसी ने तुम्हें बोला कि चलो पार्टी करा देते, तो उस मोमेंट पे तुम उस बात को भूल जाओगे, बट एक्चुअली वो बात तुम्हारी कभी प्रोसेस हो ही नहीं पाई, तुम्हारे मन से वो बात निकली ही नहीं, विच इज़ वाई सो मेनी फील लोनली ऑल द टाइम. तो लड़कियां तो तैयार है तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए. इट्स अदर men who are not ready to listen to you rant about things. Men are taught to suppress emotions, not to process them. रोना आ रहा है मत रो, लड़की जैसे लगोगे. कोई फीलिंग है उसको एक्सप्रेस मत करो, just keep it to yourselves. A lot of men are so emotionally blank क्योंकि उनको अपने emotions express करना आता ही नहीं. Even if they love someone, they have a very hard time expressing their feelings. And women can do it quite easily. And obviously, if you're feeling something and you do not talk about it to your friends, to your parents, anybody, how are they going to know that? First, men would not give other men the space to express themselves. And then when this loneliness and this suppression turns into anger, addiction, violence, then we act surprised.
ऑब्वियसली इतनी सारी सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं. दिस इज व्हाई सो मेनी मेन टेक अप स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. उनको उसमें अपना एस्केप मिलता है. आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, दिस इज वेरी रॉन्ग. दे शुड हैव द स्पेस, दे शुड हैव द सेफ स्पेस to express themselves and talk about it, but because it's not there, this is the only option left for them. In fact, even with therapy, women are usually more open to taking therapy, but men just reject this idea कि क्या करूँगा मैं बात करके, कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, because they are never taught how to deal with their emotions. In fact, आधे से ज़्यादा मर्दों को यही लगता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करना ही खुद में एक फीमेल ट्रेट है या फिर बहुत फेमिनिन चीज़ है, जबकि इट्स नॉट फेमिनिन, इट्स जस्ट ह्यूमन. भाई तुम इंसान हो तो तुमको रोना आएगा, तुमको प्यार होगा, तुमको गुस्सा आएगा. गुस्सा तो दे आर ओके विद दैट, बट हाँ बाकी जो और सॉफ्ट वाली फीलिंग्स होती है दे रिजेक्ट दैट कि नहीं यार मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ. इवन इन लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स यू विल सी कि वाइफ तो भाई पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रही है, सब कार्ड बना रही है, जो भी तरीका है कुकिंग करके उसके लिए कोई भी तरह से अपने हस्बैंड को खुश करिए, एक्सप्रेस करिए. बट द मैन इज जस्ट लाइक नो, यू नो व्हाट, आई लव यू बट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट टू लाइक शो यू दैट आई लव यू, बट यू शुड just know. And how is the woman supposed to know, sir? And this is so very common. I'm not saying कि सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ही एक्सप्रेसिव होती हैं. I'm just saying majority में ये केस होता है. And there are men who want to try and learn and see कि उनकी क्या love language है, वो कैसे एक्सप्रेस करे. But mostly this is not the case क्योंकि उनको कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई, और अगर वो ट्राई करेंगे भी तो दूसरे मर्द उनका सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे. I also want to talk about how men mock men who break gender roles. Now imagine a couple where the wife earns more than the husband. It's other men who will make fun. अबे ये तो बीवी के पैसे पे पल रहा है, इसकी तो खुद की कोई औकात ही नहीं है. अगर वो घर के काम में हेल्प कर दे जो कि उसका खुद का ही घर है तो उसको बोलेंगे ये तो नामर्द है, जोरू का गुलाम है. तो पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें प्रोवाइडर बनना भी है, बट फिर जब औरतें तुम्हें बोले कि प्रोवाइड फॉर अस देन यूल कॉल अस गोल्ड डिगर्स. तो भाई अगर कोई लड़का जेंडर नॉर्म्स ब्रेक करके अपनी बीवी के पैसों पे पलना चाह भी रहा है तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है. फिर अगर बीवी एक्सपेक्ट करे कि भाई हस्बैंड पैसा कमा के लाएगा तो उससे भी दिक्कत है कि भाई इनको तो घर बैठ के बस पैसे चाहिए होते. तो तुम चाहते क्या हो यार, पहले तुम डिसाइड कर लो. सो बेसिकली यू वांट फ्रीडम फ्रॉम द प्रोवाइडर प्रेशर कि भाई मुझे नहीं बनना प्रोवाइडर, मैं क्यों कमाऊं इतने पैसे, मैं क्यों बीवी को पालूं. बट यू विल ऑल्सो शेम मैन हु आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस वेरी नॉर्म. वो जो मीम नहीं है चाहिए क्या औरत को, इट शुड एक्चुअली बी मेड फॉर मेन. चाहिए क्या मर्द को. इवन मेन हु सपोर्ट विमेन गेट अटैक्ड बाय मेन. अगर कोई लड़का, एक तो ऑलरेडी इतनी खराब इमेज है मर्द जात की औरत लोगों के सामने, ठीक है, विच इज बिकॉज we have literal proof to be scared by men, we get raped and murdered every single day, तो that is very justified. किसी को भी डर लगेगा, किसी को भी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करने का मन नहीं होगा. It's like that Russian roulette game where you don't know which trigger might just kill you. Even in this scenario, if there are men who are trying to change this, who are working their ass off to actively support feminism and women around them, उनको भी दूसरे men इतना shame करते हैं कि नहीं देगी बे, तू करना क्या चाह रहा है, you want to sleep with her, no she's not giving it to you. Sir, I'm very sure that this guy has 100% more chances of getting laid than you ever do. So take your seat and calm the fuck down. और पूरा full blown feminism नहीं भी, अगर कोई आदमी नॉर्मल से कंसेंट की बात कर ले, बेसिक रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों की बात कर ले, विमेन्स राइट्स, उसको ट्रोल करने लग जाएंगे भाई कि नहीं देगी, मर्द बन, तू किसको इम्प्रेस करना चाह रहा है. सर दैट गाय इज जस्ट इमोशनली मैच्योर. उसमें बेसिक ह्यूमैनिटी है. किसी दूसरे जेंडर के लोगों की रिस्पेक्ट करने से कोई सिंप नहीं बन जाता है. चलो ठीक है, इवन इन अ वेरी फार फेच सिनेरियो मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक द सेम लॉजिक. जब कोई एनजीओ में जाके खाना डोनेट करता है या कोई गरीबों की हेल्प करता है तो लोग उसको बोलते हैं ना कि ये तो बस दिखावे के लिए कर रहा है. बट अगर किसी के दिखावे करने से किसी का उद्धार हो रहा है तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है. कम से कम वो ऑनलाइन हेट तो नहीं फैला रहा है, औरतों के खिलाफ बुलिंग वीडियोज तो नहीं बना रहा है, स्लट शेम तो नहीं कर रहा है ना. तो वो जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, भले उसका इंटेंशन जो भी हो. इट इज सो सैड बट देयर आर सो मेनी मैन आउट देयर हु बिलीव दैट रिस्पेक्टिंग अ वुमन मेक्स अ मैन वीक. क्योंकि ये खुद औरतों की इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको खुद से इतना इंफीरियर मानते हैं. ऑल वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, वुमेन आर डम, वुमेन आर स्टूपिड, ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो जब कोई आदमी है जो ऐसे बिलीव्स नहीं रखता है, जिसकी ऐसी सोच नहीं है, तो ये उसको भी शेम करेंगे, उसको भी अटैक करेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है, तू भी हेट कर इन पे, मैं तो हेट करता हूँ, तू भी कर. And this is so ironic because these same men would sit down and keep complaining about how nobody cares about men's mental health and nobody cares about men. तुम कितना औरतों की फिक्र करते हो यार. जब बात women's rights और feminism की आएगी, इनको सिर्फ तभी men's mental health याद आती है. बाकी टाइम तुम जब दूसरे मर्दों की mental health की वाट लगा रहे हो, उस टाइम तुम्हें नहीं याद आता कि मेन की भी मेंटल हेल्थ होती है. बट जब औरतें अपनी बात करेंगी तब कूद के तुम आके आ जाओगे बोलने के लिए कि हमारा क्या, हमारे बारे में भी बात करो, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है. तुम ही खराब कर रहे हो दूसरे मर्दों की मेंटल हेल्थ. Men also protect misogynists actively.
When women say that they hate men or they are scared of men, a lot of men get offended. But when women expose abusive men, then who rushes to protect them first? अरे मेरा भाई है ये, he's a good guy, I don't think he can do that. ये लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, बस फेक केसेस में फंसा देती हैं, इनको तो बस पैसे चाहिए पैसे. And saying this with a 1,000 rupee note in your wallet is just embarrassing, bro. She's just an attention seeker. इन लड़कियों को लड़कों की जिंदगी बर्बाद करके बहुत मजा आता है. ये तो false case है, false case, false case, false case. Alimony, 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 alimony. But they will not sit down and actually understand कि alimony होती क्या है, उसके पीछे के लॉज क्या है, हाउ इन रियलिटी कितनी कम वुमेन उसका एक्चुअली यूज भी कर पाती हैं, जिनको सच में नीड है वो भी नहीं कर पाती, तो जिनको नहीं है उनका तो छोड़ ही दो. अगर किसी लड़के का कोई दोस्त है जो बहुत गंदे जोक्स मार रहा है, रेप जोक्स मार रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, उसके बारे में उसको स्लट शेम कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है कि मैं तो इसके साथ ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये तो ऐसी है, ये तो आर वर्ड है, ब्ला ब्ला एंड शिट, हाउ मेनी मेन वुड स्टॉप दिस मैन कि तू मत बोल ऐसे, शी डज नॉट डिजर्व दैट. वेरी फ्यू आई बिलीव, क्योंकि ये मर्द दूसरे मर्द से डरते भी हैं उनको कॉल आउट करने में कि अरे मैं अगर इसको बोल दूंगा कि दूसरी लड़की के बारे में ऐसे मत बोल तो इसके सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी. ही थिंक ऑफ मी एज लेस ऑफ अ मैन बिकॉज आई एम टेकिंग अ वुमेन्स साइड एंड not his side. Bro code break हो जाएगा मेरा. Some men would rather protect dangerous men than hold them accountable, and then they ask questions like why do women hate us so much? हम उतने भी बुरे नहीं हैं. Why are they so cautious of us? Now think of feminine men, gay men, men who like to express themselves in a typically feminine manner. Who makes their life hell? There have been so many cases of school bullying and suicide where a guy was just mocked by his friends for not being masculine enough, for wearing nail paint, expressing himself. Men also get sexually assaulted by other men, verbally abused, physically abused, punching bag बना के छोड़ देते हैं. I remember there was this guy in my school who used to dance so beautifully, but it was in a typically feminine manner, right? So it was not like pop dance or something. It was more flowy, and इतना मजाक उड़ाते थे उसका लड़के. He danced so beautifully, right? All girls would appreciate him. बट लड़के उसको पीठ पीछे बस ये तो छक्का है साला, ऐसे ही नाचने आ जाता है, नचनिया है. It is so hurtful. Why can't you support other men? As long as the man is masculine, he's sporty, he's, taking up leadership roles, तब तक तो दूसरे लड़के उसके आगे पीछे ऐसे घूमेंगे उसकी पूंछ बन के. But the moment this guy is slightly deviated from what is considered masculine in this society, इतने गंदे से उसकी लाइफ हेल कर देते हैं ये लड़के लोग. ये सोचो कितनी खराब बात है, कितनी शॉकिंग बात है कि कोई आदमी अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है एंड दिस फ्रेंड इज लाइक अब्यूजिंग वुमेन, ही इज लाइक रियली बैड, ही इज अ मिसोजिनिस्ट, गंदे गंदे काम कर रहा है, किसी लड़की की जिंदगी हेल बना रहा है. तब ये भाई आराम से चौड़ में बैठा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो लौंडा हूँ, ये तो मेरा यार है यार. बट द मोमेंट कोई वहाँ से एक लड़का क्रॉस हो रहा है जिसने नॉर्मली स्कर्ट पहन रखी है, हाथ में नेल पेंट लगाया हुआ है, तब भाई साहब की मर्दानगी पूरी बिल्कुल थ्रेटन हो जाएगी, इनकी वीक फ्रेजिल मैस्कुलिनिटी पूरी हर्ट हो जाएगी. ओह माय गॉड, ये लड़का के नेल पेंट लगा रहा है, अभी छक्का है, ये तो लड़की है, ये तो मर्द कहलाने लायक ही नहीं है. तुम्हारी मर्दानगी का डेफिनेशन अगर ये है ना कि लोगों पे हेट फैलाओ और लड़कियों को हेट करो और सब चौड़ में रहो हमेशा, let me tell you, that is not masculine at all. Now, obviously, gay men commit crimes too. They do bad things like all other people, right? It cannot be generalized. But then mostly gay men are sweet and women love them. They have amazing fashion sense. They smell so good. They are so friendly. They're expressive. They are artistic. But other men, they hate gay men. So they don't hate lesbians because उनका पता नहीं कुछ fantasy या कुछ fetish कुछ पूरा होता होगा. But when it comes to gay men, इतना ज़्यादा हेट फैलाते हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा फालतू फालतू की बातें करते हैं. किसी भी गे मैन एक्टिविस्ट का इंस्टाग्राम खोल के देख लो, women are so supportive, their audience is majorly primarily women. अब तो यहाँ पे तो तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि he's doing it to get laid, he's नहीं देगी and stuff. उसको चाहिए ही नहीं भाई, उसको नहीं चाहिए लड़कियों से. But girls are still all around him. Because women like men who are emotionally soft, who are caring, who are responsible, who have nice fashion sense. But men think किसी दूसरे आदमी को जो कि बस अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, मे बी क्रॉप टॉप्स पहन रहा है, दूसरे लड़कों को डेट कर रहा है, किस कर रहा है, whatever, इनको लगता है कि उसको छक्का मीठा ये फालतू फालतू की गालियाँ देकर इनकी मास्कुलिनिटी बढ़ जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, तुम किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठ सकते हो कभी. बिकॉज दे हेट वुमेन सो मच, तो इनको कोई भी चीज़ जो स्लाइटली फेमिनिन होती है, जो कि गे मैन यूजुअली होते हैं, उनको भी ये हेट करने लगते हैं. क्योंकि इनके लिए लड़की होना, लड़की से रिलेटेड होना, लड़की की चॉइसेस, लड़की के हॉबीज, एवरीथिंग इज जस्ट वर्दी ऑफ हेट. Back in 2015 to 18, girls were dying for Justin Bieber. He had a very big female audience fan base, and men would shame him so much. ये तो छक्का है, gay है. Boys in my school used to do that a lot. I was bullied for liking him, okay? So I was a big Justin Bieber fan. I was a believer. I used to love his songs. मेरे को अच्छा लगता था सुन के. So I remember there was this party once, and वहाँ पे मेरे को बैठा दिया बीच में, and now they're forcing me to say कि तू अपने मुंह से बोल कि Justin Bieber छक्का है.
मैं छोटी थी, ठीक है, मेरे को पूरे इतना डिटेल में होमोफोबिया एंड होमोसेक्सुअलिटी, आई डिड नॉट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट आई स्टिल न्यू दैट दिस इज रॉन्ग, दैट जस्ट बिकॉज, मतलब ये क्या बात हो यार, मैं क्यों बोलूँ, पहली बात तो वो है नहीं, दूसरी बात किसी को ऐसा बोलने किसी तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये एक इंसल्ट है, एंड वाई आर यू यूजिंग अ लिटिल स्लैंग फॉर समवन हु हैज नॉट हार्म्ड यू anytime just because he has a feminine voice or he has a female audience. So you see, अगर किसी लड़के की फेमिनिन वॉइस है या वो थोड़ा फेमिनिन दिखता है तो इससे दूसरी लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मजाक नहीं उड़ाएंगी, उसका दुश्मन एक आदमी ही है। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, I've heard from my own friends, इतनी ज़्यादा अभी भी वहाँ पे रैगिंग चलती है बिहाइंड द सीन्स वेयर द अथॉरिटीज डोंट नो, एंड मोस्टली दीज आर लाइक मेल डोमिनेटेड कॉलेजेस, इंजीनियरिंग इज अ कोर्स लाइक दैट स्टिल, जहाँ पे औरतें कम है, इतनी ज़्यादा रैगिंग होती है, सीनियर्स जूनियर्स को इतने गंदे तरीके से बुली करते हैं, एंड देन व्हेन दीज जूनियर्स बिकम सीनियर्स दे आर लाइक हमारे साथ हुआ था तो हम भी करेंगे। इट्स अ टॉक्सिक साइकिल दैट यू विल नॉट सी हैपनिंग इन वुमेन्स कॉलेजेस। होता होगा, आई एम नॉट सेइंग कि कहीं नहीं होता, बट कम होता है, बिकॉज वुमेन रिस्पेक्ट ईच अदर मोर, दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर more than men do. And just like women, men are statistically more prone to face violence from other men too. Think about the internet masculinity culture, all of these podcasts जहाँ पे बस मर्द बैठ के बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, ठीक है, कि मर्द को ऐसा होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, तुम्हारा नहीं है तो ऐसे मर्द तो ना मर देंगे, तो किसी लायक ही नहीं है, your penis size should be this, your bicep size should be this, तुम जिम नहीं जाते हो तो तुम नालायक हो, तुम इतने पैसे नहीं कमा रहे हो तो तुम नालायक हो, if you have to be worthy as a man, you have to earn a certain amount of पैसा, you have to have a big house, you have to own a car, all of these things, ये सारे expectations एक आदमी दूसरे आदमी पे थोपता है, औरतों से ज़्यादा। इतने सारे वो जो रिएक्शन वीडियोस होते हैं, द मैन इज जस्ट सिटिंग इन ह्यूमिलिएटिंग अदर मैन, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मेन हु मेक रोस्ट कंटेंट, एंड इसमें वो सिर्फ औरतों को नहीं, आदमियों को भी रोस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा अगर कोई फेमिनिन है, थोड़ा सा किसी से आदमी से कुछ गलती हो गई, वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं, कुछ भी, इतना ज्यादा मजाक उड़ाते हैं यार। आई रिमेंबर दिस वन टाइम, आई डोंट रिमेंबर कौन सा मैच था, क्या था, बट विराट कोहली डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन दैट मैच, तो जो लोग उसके इतने बड़े फैन, इतना ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, दे स्टार्टेड गिविंग रेप थ्रेट्स टू हिज ओन डॉटर। तब कहाँ गया तुम्हारा प्यार उसके लिए? And this is not biology, okay? Men are not born to be cruel to each other. This is conditioning. They are taught that dominance is nice, that softness is bad. बचपन से ही जब लड़के रोते हैं तो उनको सिखाया जाता है मत रो, be strong like a guy, don't cry like a girl, don't run like a girl, don't show your emotions, don't express your emotions. मर्द को दर्द नहीं होता, अरे भाई उसकी भी सेम बॉडी है, सेम स्किन है, सेम मसल्स हैं, क्यों दर्द नहीं होगा? My point here is that लड़कियां फिर भी इन नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, which is what dismantling patriarchy and misogyny is all about. But लड़के उन लड़कियों पे हेट करने लगते हैं, जबकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली dismantling patriarchy is only going to benefit men's mental health too, but they don't understand it. So instead of hating on feminists, take the initiative, talk to your bros. Obviously यार, फीमेल फ्रेंडशिप्स के अपने बहुत सारे डाउनसाइड्स है, जेलसी होती है, अब सब कुछ होता है, ठीक है, बट वन थिंग इज देयर जो कि मेल फ्रेंडशिप्स में नहीं है, वो है द स्पेस टू बी वल्नरेबल, द स्पेस टू एक्सप्रेस योर सेल्व्स, टू होल्ड योर इमोशंस सेफ, एंड दैट इज सो सो इम्पॉर्टेंट। इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, जो कि लड़कों की लाइफ में मिसिंग होती है। सो जस्ट गिव दैट स्पेस टू योर फ्रेंड्स। द रीजन मेन का सुसाइड रेट इज हायर, द रीजन वाई दे आर सो इमोशनली शट डाउन एंड नॉट एबल टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स इज बिकॉज उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, बी अ मैन ऑफ द हाउस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पर वो एनफोर्स करने वाले सबसे पहले मर्द ही होते हैं। तुम दूसरे मर्दों के साथ सॉफ्ट तो बनो, उनको तो स्पेस दो। एक बार अपने दोस्त से तो पूछ लो कि भाई तू ठीक है, तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरा ब्रेकअप हुआ, हाउ यू डीलिंग विद इट। फॉर वंस सिट डाउन एंड सिगरेट और दारू की बोतल को साइड हटा के एक बार अपने दोस्त से पूछ लो कि वो ठीक तो है, उसको तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं, पर ये करने में तो भाई तुम्हें दादी नानी याद आ जाएगी, तो तुमसे हो नहीं पाएगा, बट हेटिंग ऑन वुमेन इज ईजियर, राइट? तो I want you to think about it, that the biggest enemy of men is not women. It is the version of masculinity that other men expect from men. The version of masculinity that men force onto each other, failing which they are going to be bullied. And if men truly want better mental health and want freedom from all of this, they need to stop punishing other men for being human. भाई इंसान है वो, उसको express करने दो अपनी feelings, dance करना है करने दो, makeup करना है करने दो भाई, as long as someone is not harming you actively, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है? If a man wants to have sex with another man, why do you care? I don't get it. So now I want you to pause and think that when men say that nobody cares about men, the real question is, do other men care about men? Because the moment a man is weak, gay, less masculine, thin, poor, other men would start making fun and make his life hell. ऑनेस्टली तुम खुद से अपने इमोशन से डील नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूँ, या तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से बात कर लो, अपनी मम्मी से 2 मिनट बैठ के बात कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, ट्राई टू एक्सप्रेस, ट्राई टू जर्नल,
एंड फिर भी कुछ भी काम नहीं करे तो भाई टेक थेरेपी, क्योंकि तुम थेरेपी नहीं लोगे फिर तुम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे थ्रू योर अग्रेशन, थ्रू योर एडिक्शन हैबिट्स, थ्रू वायलेंस, एवरीथिंग. सो इफ यू फील लाइक यू नीड हेल्प, गो आस्क फॉर इट, सीक हेल्प. कुछ इसमें शेमफुल नहीं है. इफ यू आर अ गाय यू कैन टेक थेरेपी, दैट डजंट मेक यू फेमिनिन, दैट डजंट मेक यू वीक. ऐसा कुछ भी नहीं होता यार. इमोशंस सबके पास होते हैं. तुम इंसान हो, तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट ही है कि यू कैन फील इमोशंस. बाय रन अवे फ्रॉम इट यार, एम्ब्रेस इट. रोना आ रहा है तो रो, हंसी आ रही है तो हंसो, शर्म आ रही है तो शर्माओ. थैंक you for watching this video. I hope you like it. Tell me which are the topics you want me to make videos on. I honestly love coming here and expressing my views and talking to you all. I enjoy YouTube long content more because I'm able to deeply explain what I feel about things rather than just a 2-minute reel. So yeah, this is fun and this is it for today. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love you.